Single audit I will cover, or maybe sir will cover along with the government audit. Okay. Okay. So no problem. Like it will do not have any link with this single audit or others. Okay. It is a separate topic. So I am covering this topic Your today. voice is breaking. Sorry. Your voice is breaking. Okay. Just a minute. Okay. Is it fine now? Yes, now it is fine. Okay. So I was saying that sampling is not related to single audit or other topics. So it is a separate topic. So you will not have any issue when you read it. Okay. Okay. So sampling is basically selecting the sample when you are doing the audit of less than 100% of population. Okay. So as I told you that it is not always practical to do 100% of testing. So an auditor selects some sample, which is called the sampling. Okay, when he does the less than 100% of the audit of items. Okay. Yes. So to select the sample, we have generally two methods: non-statistical sampling and statistical sampling. Okay. What happens, like if you use the quantitative measures formulas to calculate your sample size as well as the sample result, then it is called the statistical method. Okay, when you use actually some methods to calculate the sample size and all, then it is called, sorry, then it is called the statistical method. Just a minute. Okay. Whereas if an auditor uses like 100% of his professional judgment to calculate the sample size, evaluate the result, then it is called the non-statistical approach, okay, or non-statistical sampling. So for example, No, I no, have no. given you, uh, Can you explain non-statistical again? yes, I am explaining again. Okay. So suppose I am giving you the task to do the audit of account receivable. Okay, you have thousand of customers, thousand of account receivable accounts. Since it is not practical to do the thousand customers account testing, so you will select some of the account and to do test. Okay, so this is called the sampling, like selecting less than of 100 items. Suppose you are selecting out of 1000 sample, you are selecting the 50 sample only. So how is this 50 number arrives? So have you used any mathematical methods to calculate how much you have to do testing or not? Or have you used your only judgment? Like you are randomly selecting, you are on the basis of some amount you are selecting. So it is based on your professional judgment about sample size and evaluation of result. Should I Okay. explain it again or is it clear? No, no. One thing that I understood is non-statistical means it is totally upon our judgment, and statistical Yes. is we are using any form of formulae or method to find out. Yes. So under statistical approach, there is still professional judgment involved. Like when you are evaluating the result, like it is the professional judgment of an auditor that way he will determine whether the results are accurate or not. नहीं नहीं ये लाइन नहीं समझा.
देखो स्टैटिस्टिकल मेथड में आप सैंपल साइज कैलकुलेट करते हो मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करके, लेकिन हाँ। जब आप रिजल्ट इवेलुएट करोगे तो उन रिजल्ट को इवेलुएट करने के लिए आपके पास कोई मेथड्स नहीं है, यू हैव टू यूज योर प्रोफेशनल जजमेंट ओनली। ओके। ओके, वेयर इज नॉन स्टेटिस्टिकल मेथड में आप सैंपल साइज सिलेक्ट कर रहे हो, रिजल्ट इवेलुएट कर रहे हो, डेटा प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ। क्लियर? हाँ, क्लियर। Next is the sufficiency of audit evidence is related to the design and size of the audit sample, among other factors. The size of the audit sample necessary to provide sufficient appropriate audit evidences depend upon the both objective and efficiency of the sample. More efficient sample achieve the same objective with the smaller sample size. ओके, सो इफ यू वांट कि आपकी ऑडिट इफेक्टिव रहे, आपके पास एविडेंसेस प्रॉपर मिले, यू हैव टू सिलेक्ट द सैंपल जो आपको आपकी लाइक ऑडिट को एफिशिएंट बनाए, मीन सैंपल शुड बी प्रॉपर। ठीक है, इन केस यू आर सिलेक्टिंग द रॉन्ग सैंपल देन इट विल गिव यू द रॉन्ग ओपिनियन ओनली ना। हाँ। So there is uncertainty involved when you are selecting a sample. How is it involved? So first of all is the audit risk. You know audit risk क्या है कि an auditor will give an wrong opinion. Okay? Audit risk पता है आपको कि ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दिया, लेकिन अब वो गलत ओपिनियन किस वजह से दिया? कि मे बी उसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं थी, या मे बी क्या उसने प्रोसीजर तो सही अप्लाई किए लेकिन उसका सैंपल प्रॉपर नहीं था। सो दो चीजें हो सकती हैं। हाँ। So this is called sampling and non-sampling risk. एक गलत ओपिनियन पर ऑडिटर को एक गलत ओपिनियन ऑडिटर दे रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? या तो उसकी सैम्पलिंग रिस्क है, मतलब उसका सैंपल ही प्रॉपर नहीं था। कि फॉर एग्जाम्पल जो उसने अकाउंट सिलेक्ट किए थे टेस्टिंग के लिए वो अकाउंट सही थे, तो ठीक है उसने सही ओपिनियन दे दिया, लेकिन एक्चुअल में जो सिलेक्ट नहीं किए थे वो अकाउंट्स में प्रॉब्लम थी। इट मीन्स उसका सैंपल प्रॉपर नहीं था, सैंपल वाज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, समझा थोड़ा। थोड़ा नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आपने मान लो 100 में से 10 सैंपल चेक कर रहे, ठीक है, 100 अकाउंट्स थे आपके पास, आपने 10 चेक कर लिए और उस 10 में आपको कोई गलती नहीं दिखी। हाँ। ठीक है, तो आप तो यही कहोगे कि आपके सारे सैंपल वो सारे अकाउंट प्रॉपर हैं, बिकॉज हाँ। आप क्या करते हो उस सैंपल के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट देते हो ना। हाँ। तो आप तो यही कहोगे, और इसका मतलब कि आपने गलत ओपिनियन दे दिया बिकॉज आपके बाकी 90 सैंपल्स में तो प्रॉब्लम थी, उसमें तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। तो डेट मीन्स जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया था वो प्रॉपर ही नहीं था, आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता था। करेक्ट, समझा ये। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग रिस्क, कि आपकी ओके। सैंपल ही प्रॉपर नहीं था। ठीक है, सैंपल वाज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अंडरस्टूड। ओके, वेयर इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या? जो सैंपल रिलेटेड रिस्क नहीं है, मींस जो आपके प्रोसीजर्स में कमी है। इट इज द रिस्क बेस्ड ऑन द ऑडिटर प्रोसीजर, कि ऑडिटर ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट प्रॉपर यूज नहीं करी, उसने अपने ऑडिट प्रोसीजर प्रॉपर यूज नहीं करे, तो जिसकी वजह से उसे गलत ओपिनियन मिला। इट इज कॉल्ड द नॉन सैम्पलिंग रिस्क। फॉर एग्जाम्पल जो भी ऑडिटर ने रिजल्ट इवेल्युएट किए वो इवेल्युएशन ही गलत कर दी। ओके, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में प्रॉब्लम थी। सेकेंड थिंग हो सकता है कि उसके प्रोसीजर ही प्रॉपर नहीं थे, कि लाइक एआर के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन जरूरी है और ऑडिटर ने वही नहीं करी। ओके। सो दिस इज कॉल्ड द नॉन सैम्पलिंग रिस्क, जो ऑडिटर के प्रोसीजर्स के फेलियर की वजह से रिस्क है। ठीक है, तो आपका ऑडिट ओपिनियन गलत हो गया, उसकी क्या वजह हो सकती है? या तो आपने टेस्टिंग ही नहीं ढंग से करी, मींस आपके प्रोसीजर्स इफेक्टिव नहीं थे, विच इज कॉल्ड द नॉन सैम्पलिंग रिस्क,
या आपने प्रोसीजर्स तो सही अप्लाई किए, लाइक आपने एआर के लिए कंफर्मेशन ली, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अलावा आपने सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स और भी परफॉर्म करे, लेकिन आपका सैंपल ही प्रॉपर नहीं था, मींस वो 10 सैंपल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और जबकि जो 90 आपने छोड़ दिए उसमें प्रॉब्लम थी. So this is called the sampling risk. Yes. Yeah. Clear? Okay. Yes. So non-sampling risk can be reduced to negligible level by adequate planning. So how can you reduce this non-sampling risk? कि आप अपने procedure effectively applied करो, because it is due to negligence in your procedures. Like if you have not prepared the planning procedure properly, your supervision is not properly, system of quality management and review is not proper. So this is the non-sampling risk, and you can reduce it by preparing more effective audit procedures. Okay, और statistic और sampling risk कम करना है तो you have to select an appropriate sample. ठीक है? Is Okay. it clear कि आप कैसे reduce कर सकते हो दोनों risk को? हाँ. Next is नॉन there are सैम्पलिंग के लिए एडिक्वेट प्लानिंग और प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगा, yes और सैम्पलिंग के लिए अप्रोप्रिएट sample मेजर्स choose और करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट सैंपल. हाँ. ताकि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो. हाँ. ठीक है, अब आते हैं आपके टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पलिंग रिस्क दैट अफेक्ट द सब्टेंटिव टेस्टिंग. तो सब्टेंटिव रिस्क क्या बता सॉरी सैम्पलिंग रिस्क क्या बताया, आपके सैंपल में प्रॉब्लम थी कि सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. तो इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं? द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस एंड द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन. ओके, द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस मीन्स आपका सैंपल प्रॉपर था लेकिन आपकी पॉपुलेशन प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से आपने इनकरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया. पॉपुलेशन तो सही है लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं थी. एक मिनट, वापस. सैंपल प्रॉपर था लेकिन पॉपुलेशन प्रॉपर नहीं थी. मतलब जैसे कि सैंपल मैंने 10 का सैंपल के नाम पे निकाला बट पॉपुलेशन मेरा 100 था फॉर कि. एग्जाम्पल आपने 100 में से 10 करे थे टेस्ट. हाँ. अभी हम ये एग्जाम्पल ले रहे थे ना कि 100 अकाउंट है, उसमें से आपने 10 की टेस्टिंग कर ली. हम्म. अब उस 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर ऑल करेक्ट. हाँ. ठीक है, और जबकि 90 में प्रॉब्लम थी जो आपने छोड़ दिए. हाँ. सो इसका मतलब क्या है, उस 10 सैंपल के बेसिस पर आपने क्या कहा कि पूरी पॉपुलेशन करेक्ट है, सारे अकाउंट हाँ. बैलेंसेस करेक्ट है, जबकि एक्चुअल में वो नहीं थे. सो दिस इज कॉल्ड द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस. ओके. देन कि यू हैव इनकरेक्टली एक्सेप्ट द पॉपुलेशन, वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है बट यू हैव लाइक इनकरेक्टली एक्सेप्टेड. ओके. एनी डाउट? नहीं. सिमिलरली रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन मीन्स आपने इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया. लाइक आपके 10 सैंपल प्रॉपर नहीं थे, जिसके बेसिस पर आपने क्या कहा कि 10 प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब मेरे 100 के 100 प्रॉपर नहीं है, जबकि आपके वो सिर्फ 10 प्रॉपर नहीं थे और बाकी 90 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सो दिस इज द रिस्क ओके. ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, कि आपकी सैंपल प्रॉपर नहीं था लेकिन पॉपुलेशन प्रॉपर थी. समझा. क्लियर? हाँ. Okay. So the risk of incorrect acceptance is the chance that statistical evidence might support fair statement of a material misstated book value. The risk is controlled by adjusting the ratio of tolerable. That is not relevant for you. अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है ये. Is the chance that statistical evidence might fail to support a
fair statement of correct values. Just remember this. Risk of incorrect acceptance means your sample is okay, but the population was not okay. But हाँ risk of incorrect rejection means your sample is not okay, but the population was okay. ओके Clear? समझा So this is the table given, and it may be asked this same table in your exam also. How? देखो, आपके क्या है, आपके क्लाइंट ने कुछ रिकॉर्ड कर रखा है और आप उसके बेसिस पर एविडेंस गैदर कर रहे हो, ठीक है, यही है। हाँ अगर आपके क्लाइंट ने सही रिकॉर्ड कर रखे हैं और आपको एविडेंसेस भी क्या मिल रहे हैं, सही के मिल रहे हैं, ठीक है, मीन्स योर सैंपल इज ओके एंड योर पॉपुलेशन इज ऑल्सो ओके, तो यू विल अराइव ऑन द करेक्ट डिसीजन। हाँ आपने 10 चेक किए, 10 प्रॉपर थे और बाकी 90 भी प्रॉपर थे, तो आपके करेक्ट हुआ डिसीजन। हाँ आपके 10 प्रॉपर नहीं थे और 90 भी प्रॉपर नहीं थे, आपने जो सैंपल चेक किया वो सही नहीं था, इसलिए आपने कहा पॉपुलेशन भी सही नहीं है, और वो एक्चुअल में भी सही नहीं थी, तो डेट मीन्स तभी भी आपका करेक्ट ओपिनियन हुआ। वापस वापस आपने कहा गलत है, मतलब मिसस्टेटेड है, और वो एक्चुअल में भी मिसस्टेटेड था, तो ये करेक्ट हाँ डिसीजन हुआ आपका। हाँ ठीक है, आपने जैसे 100 में से 10 सैंपल चेक किए और वो 10 गलत आ रहे थे, तो इसका मतलब हाँ आपने क्या कहा कि पूरी पॉपुलेशन गलत है, और एक्चुअल में भी वो गलत थी, तो आपका करेक्ट डिसीजन हुआ। हाँ हुआ ओके, सो इन दिस केस यू आर अराइव्ड ऑन द करेक्ट डिसीजन। लेकिन अब सपोज करो आपने क्या कहा, आपने एविडेंसेस गैदर किया, आपने 10 सैंपल चेक किए, आपने कहा कि आपकी क्या है, कोई भी मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं है, यू हैव एक्सेप्ट दी सैंपल कि आपका सैंपल और पॉपुलेशन ओके है, लेकिन एक्चुअल में वो ओके नहीं थी, सो दिस इज द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस एज आई डिस्कस्ड इट, कि आपका सैंपल प्रॉपर था लेकिन पॉपुलेशन प्रॉपर नहीं थी, डेट मीन्स आपने इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी तो पॉपुलेशन सही है, जबकि एक्चुअल में पॉपुलेशन सही नहीं थी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, आपने सैंपल चेक किया, सैंपल को रिजेक्ट कर दिया आपने क्योंकि सैंपल गलत था, ठीक है, आपने क्या कहा 10 अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, डेट मीन्स पूरी पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है, हाँ लेकिन एक्चुअल में वो फेयरली स्टेटेड थी, मीन्स बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सो दिस इज द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट करेक्ट रिजेक्शन, एग्जेक्शन आपने इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? यस क्लियर So this is the risk associated with your substantive testing. ओके नेक्स्ट, अब हम कंट्रोल्स की बात करते हैं। आप कंट्रोल्स भी तो चेक करते हो हाँ व्हेन यू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। चलो, अब कंट्रोल्स में क्या है, आपने कंट्रोल्स चेक किए, आपने क्या कहा कंट्रोल्स अच्छे हैं, और वो एक्चुअल में भी करेक्ट थे, एक्चुअल में भी कंट्रोल्स गुड थे, सो डेट मीन्स यू आर अराइव्ड ऑन करेक्ट डिसीजन। हाँ आपने कहा कंट्रोल्स बुरे हैं और वो एक्चुअल में भी बुरे थे, सो यू विल अराइव ऑन करेक्ट डिसीजन। हम्म आपने क्या कहा कंट्रोल्स अच्छे हैं लेकिन वो एक्चुअल में अच्छे नहीं थे, हाँ so that means this is the risk of accessing control risk too low. What is this? देखो, जब आप कंट्रोल्स चेक करते हो तो यू विल चेक कि आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है, आप यही चेक करते हो कंट्रोल्स जब हाँ चेक, आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव होते हैं तो आपका कंट्रोल रिस्क कम रहता है ना, कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, आपका कंट्रोल रिस्क कम है, कि कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर और जबकि आप, अगर आपके कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं तो डेट मीन्स आपका कंट्रोल रिस्क ज्यादा रहता है। हाँ देन सो अब आप क्या कह रहे हो, आपने कहा कंट्रोल्स अच्छे हैं, मीन्स आपने कंट्रोल रिस्क को कम लिया बहुत, जबकि वो एक्चुअल में अच्छे नहीं थे, सो दिस हाँ इज द रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो, आपने कंट्रोल रिस्क को बहुत कम एक्सेस किया। ओके
ठीक है, आपने कहा कंट्रोल अच्छे हैं, यू चेक की इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं जबकि वो एक्चुअल में उतने अच्छे नहीं थे। नहीं। नेक्स्ट इज, आपने कहा कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं और आपने अपना कंट्रोल रिस्क बहुत हाई लेकर चले हो आप। एक्चुअल में आपके कंट्रोल्स अच्छे थे, सो दिस इज द रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू हाई। आपने कहा कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं जबकि एक्चुअल में वो अच्छे थे, सो दिस इज द ठीक रिस्क है। कि आप कंट्रोल रिस्क बहुत हाई लेकर चल रहे हो। इतना समझ में आया? हाँ, समझा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? आपने कंट्रोल रिस्क कम लेस एक्सेस किया या हाई एक्सेस किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? देखो, जब आप कंट्रोल रिस्क कम एक्सेस करते हो, हाँ। आपने कहा इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो आपको क्या पर वो लगा अच्छे होगा नहीं है। कि मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम है या ज्यादा है अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो? कम है। कम है, तो इसका मतलब आपने अपनी टेस्टिंग कम करी। हाँ। ओके, टेस्टिंग ओके। कम करी, इसका मतलब हो सकता है कि आप गलत ओपिनियन पर आ गए हो। हाँ। तो दिस इज कॉल्ड द इनइफेक्टिव ऑडिट। इनइफेक्टिव ऑडिट। यस, ओके। ये ऑडिट इफेक्टिव ही नहीं रही बिकॉज आप ओपिनियन ही नहीं सही कैलकुलेट कर पाए। इनइफेक्टिव ऑडिट यस, बिकॉज हम गलत ओपिनियन दे रहे हैं, इसीलिए हमारा ओपिनियन गलत हो गया। गलत हो सकता है ना आपका। हाँ हाँ। अपने कंट्रोल बहुत अच्छे माने और उसके बेसिस पर आपने अपनी टेस्टिंग कम कर दी जबकि आपके कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव थे नहीं, सो डेट मीन्स देयर इज रिस्क यस। आपका ओपिनियन क्या हो जाए, गलत हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द इनइफेक्टिव ऑडिट। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू हाई। आपने अपना कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा लेकर चले हो, मीन्स आप ये समझ के चले हो कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत बुरे हैं। मतलब कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे और इसलिए आपने बहुत ज्यादा टेस्टिंग करी जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। सो दिस इज कॉल्ड द इनएफिशिएंट ऑडिट। ओके, आपकी ऑडिट इनएफिशिएंट रही बिकॉज यू हैव टेस्टेड मोर देन रिक्वायर्ड। ओके। ओके, हाँ। सो मेजर रिस्क कहाँ इन्वॉल्व है आपका? देखो, आपकी आपने चाहे टेस्टिंग ज्यादा करी तो इसका मतलब आपका ओपिनियन तो सही ही रहेगा, आपने टेस्टिंग ज्यादा की है बिकॉज। लेकिन अगर हाँ। आपने टेस्टिंग ही गलत कर दी और आपका ओपिनियन ही गलत हो गया तो डेट मीन्स डेट इज मोर डेंजरस। सो ओके। रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो, ये आपका ज्यादा मतलब वैल्यूएबल रिस्क रहेगा क्योंकि इसकी वजह से आपका ओपिनियन गलत हो सकता है। Done? समझा। यस। So you have to like understand all the about this because they might give you some questions, some MCQ on this topic also. ठीक है। Okay. So हाँ। next is sampling in substantive test of detail. अब हम टेस्ट ऑफ डिटेल करते हैं तब सैम्पलिंग कैसे करते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं तब सैम्पलिंग कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। देखो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम किस लिए करते हैं आपको पता है? टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब वही हुआ ना कि चेक करने सैंपल्स लिए प्रॉपर है या नहीं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम अमाउंट चेक करने के लिए बेसिकली करते हैं, जैसे आपके एआर के अमाउंट करेक्ट है या नहीं है, आपके ओके। अकाउंट पेबल करेक्ट अमाउंट पर है या नहीं है। ओके। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम अमाउंट के लिए करते हैं और जबकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम कंट्रोल्स चेक करने के लिए करते हैं, लाइक आपकी ड्यूटी सेग्रीगेटेड है या नहीं है। ओके। हम्म
सो अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने वाले हो, ठीक है, सब्टेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें आप सैम्पलिंग कैसे करते हो, मीन्स आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि मुझे इतने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है. So first of all, when planning a particular sample for substantive test of detail, the auditor should consider the following. So when you are selecting some sample, you have to first consider this. कि the relationship of sample to the relevant audit objective, preliminary estimate of materiality level, the auditor's allowable risk of incorrect acceptance, or characteristics of item comprising the account balance or class of transaction to be sampled. फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स की चेकिंग टेस्टिंग करने वाले हो, तो सेल्स में आपके रेलेवेंट अकाउंट्स क्या आएंगे, आपके अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है. नहीं, अका नहीं, मतलब मेरे को समझा नहीं ऐसा। ओके, आपको सेल्स की टेस्टिंग करने के लिए बोल दी, हाँ। तो अब आप सबसे पहले यू विल डिसाइड ना कि कौन से लाइक आपके अकाउंट रेलेवेंट होंगे उसके लिए, ओके। ठीक है. जैसे आपको एआर के लिए बोल दी, अब एआर में आप कस्टमर बैलेंसेस चेक करोगे ना. हाँ। So you have first have to check the relevant account की आपको क्या, आपकी पॉपुलेशन बेसिकली क्या होनी चाहिए, आपको कहाँ से सैंपल उठाना है. आप अकाउंट पेबल में जाके थोड़ी सैंपल उठाओगे. अगर आप सेल्स की टेस्टिंग कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल में से उठाओगे सैंपल, हाँ हाँ, ठीक है. समझा। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द पॉपुलेशन कि आपको पॉपुलेशन मतलब किस में से सैंपल उठाना है आपको, ओके. सेकेंड थिंग, आप अपने मतलब मटेरियलिटी लेवल और कितना रिस्क आप अलाउ कर सकते हो, लाइक हाउ मच रिस्क यू आर रेडी टू टेक रिलेटेड टू रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, तो ये सब चीजें ऑडिटर डिसाइड करके चलता है. नेक्स्ट, ही डिटरमाइन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल डन, कि आपको पॉपुलेशन डिटरमाइन करनी है कि आप पॉपुलेशन किस में से आप सैंपल को उठाने वाले हो, ओके. ओके। The auditor should consider the tolerable error. Next, you have to consider what should be the amount of tolerable error. Tolerable error means ki how much error like you are ready to tolerate. But error in what sense? Like how much misstatement you are ready to tolerate. कि for example, कि आपका 5,000 अमाउंट है और 5,000 अमाउंट रिटर्न है और एक्चुअल में वो 5,500 है. So there is a variation of $500. हाँ, So is it tolerable for you or not? कि क्या आप इसे मतलब कंसीडर करोगे और या जाने दोगे. So मतलब this वो is a tolerable error. कंपनी साइज पे भी डिपेंड करता है ना। अगर वो बड़ी कंपनी है तो ठीक है, एक बार के लिए हम इसे इग्नोर किया कर सकते हैं। बट इफ अगर एक वो स्मॉल एसएमई कंपनी हुई तो जिसके लिए 500 का बिल भी मैटर करता है, तो हम उस पर ज्यादा चेक वेक करेंगे। हाँ, वो ऑडिटर डिपेंड मतलब डिसाइड करेगा कि ही शुड कंसीडर द टॉलरेबल एरर. देन कि जैसे अब आपके सैंपल्स, आपने 10 सैंपल्स सिलेक्ट किए, उन 10 सैंपल में आपको कुछ सैंपल्स में वेरिएशंस दिख रही हैं, लाइक कहीं पर $100 अमाउंट की, कहीं पर $5, कहीं पर $20. सो व्हाट शुड बी योर टॉलरेबल एरर, कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो कोई मिसस्टेटमेंट को. बिकॉज अगर आपकी ये $2 के अमाउंट पर अगर आप सैंपल रिजेक्ट कर दोगे तो फिर लाइक फिर तो आपका ओपिनियन गलत हो सकता है ना, क्योंकि आप इतने हाँ। छोटे अमाउंट को भी कंसीडर कर रहे हो, ओके। ओके. यस। When planning a sample for substantive test of detail, the auditor uses judgment to determine which item, if any, in an account balance or transaction class should be individually examined and which item should be subject to sampling. Okay, then you will decide कि क्या आपको सैंपल पूरी पॉपुलेशन से सिलेक्ट करना है या आपको कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो आपको 100% टेस्ट करने हैं, वाइल बाकी में से आपको सैंपल सिलेक्ट करना है.
मान लो आपके पास 100 अकाउंट रिसीवेबल थे, जिसमें आपके 5 अकाउंट ऐसे थे जिनका बहुत ज्यादा बैलेंस था, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट की ट्रांजेक्शन थी उसमें। सो यू विल डिसाइड कि यस, अगर ये 5 अकाउंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो 5 तो आपको चेक करने ही करने हैं। हाँ। ओके, तो इसका मतलब आप वो 5 को अलग से चेक करोगे, 100% चेक करोगे, देन जो आपके रिमेनिंग है 95, उसमें से आप सैंपल सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आपने क्या करे, सैंपल अभी अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, एक जिसकी आपको 100% चेकिंग करनी है, एक जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है सैंपल। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो ऑडिटर मे बी एबल टू रिड्यूस द सैंपल साइज रिक्वायर्ड बाय सेपरेटिंग आइटम सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस ग्रुप। ठीक है, ही कैन सेपरेट द आइटम इनटू द ग्रुप, एज आई टोल्ड यू कि जैसे 100% टेस्टिंग करनी है तो उसे एक ग्रुप में डाल दिया, जिसमें से सैंपल सिलेक्ट करना है उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। और सपोज करो कि आपके पास कुछ ऐसे अकाउंट है जिसमें बहुत मिनिमम लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बैलेंस है, तो आपने वो चेक ही नहीं करना है तो उसे अलग ग्रुप में डाल दिया। यू कैन सेग्रीगेट देम टू डिफरेंट ग्रुप ऑल्सो। इज इट क्लियर? यस। Next, to determine the number of items to be selected in a sample for a particular substantive test of detail. अब सैंपल साइज कंसीडर करने के लिए हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं कि अब मेरे 95 जो मैंने सिलेक्ट किए थे, मतलब 95 पॉपुलेशन में से मुझे लगा लो 20 सैंपल सिलेक्ट करने हैं, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे 20 सिलेक्ट करने हैं या 30 करने हैं? सो हाउ विल आई सिलेक्ट द सैंपल साइज? सो एज आई टोल्ड यू देयर आर टू मेथड्स। आप या तो मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करके सैंपल साइज निकाल सकते हो, या बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हो, यस आपने उस मेथड में कैलकुलेट किया कि आपको 20 सैंपल सिलेक्ट करना है, या आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज कर रहे हो, मीन्स जो जो आपको दिख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आप उसे सिलेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड। इज इट क्लियर? सो जब आप सैंपल साइज सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रख के चलनी है, लाइक हाउ विल यू सिलेक्ट द सैंपल साइज? सो फर्स्ट इज ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि ऑडिटर ने रिस्क कितना डिसाइड कर रखा है, हाउ मच रिस्क ही हैज एक्सेस रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, समझा। ठीक है, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, आपको क्या लगता है रिस्क ज्यादा होगा तो वो सैंपल ज्यादा सिलेक्ट करेगा या कम? ज्यादा। नेक्स्ट इज assurance obtained from other substantive procedure directed at the same assertion, कि मान लो आप अकाउंट रिसीवेबल के लिए अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने वाले हो जिसके लिए आप ऑलरेडी बाकी प्रोसीजर्स भी कर चुके हो। सो उस पर डिपेंड करेगा कि मान लो अगर आपको बाकी प्रोसीजर्स में कोई इतनी वेरिएशंस नहीं दिख रही, दैट मीन्स अब आप कम भी करोगे टेस्टिंग तो चलेगा। हाँ, चलेगा। नेक्स्ट इज टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, आप कितनी मिसस्टेटमेंट टॉलरेट कर सकते हो? सो इट शुड हैव इनवर्स और डायरेक्ट इफेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्ट इफेक्ट। नहीं, डायरेक्ट? इनवर्स इनवर्स। इनवर्स, यस। अगर आप कम टॉलरेट कर सकते हो, मीन्स आप कम से कम एरर्स चाहते हो, कि कम से कम मतलब एरर को आप टॉलरेट कर सकते हो, इसका मतलब आपको टेस्टिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते इतना। ओके। तो अगर आपकी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का अमाउंट ज्यादा है तो यस आप सैंपल साइज कम सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का अमाउंट कम है तो उस केस में आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। ओके। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट का अमाउंट कितना है, लाइक आपको कितनी लग रही है मिसस्टेटमेंट एसोसिएटेड हो सकती है? सो इट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, कि अगर आपको ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब आपको टेस्टिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, सैंपल साइज ज्यादा रखना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको मिस स्टेटमेंट कम दिख रही है, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, सैंपल साइज रिड्यूस कर सकते हो. ओके. Yes. Okay, next is the stratification of the population. Just a minute. हाँ. Okay. Next is the stratification of the population when performed. Stratification means जो आपने सैंपल्स को डिवाइड पॉपुलेशन को डिवाइड किया था डिफरेंट ग्रुप्स में, सो इट विल डिपेंड ऑन दैट आल्सो आपका सैंपल साइज. फॉर हाँ. एग्जाम्पल आप जैसे आउट ऑफ 100 में से 5 की तो 100% करने ही वाले हो, इट मीन्स अब आपको 95 में से सिलेक्ट करने हैं. सो हाँ. योर पॉपुलेशन, योर सैंपल साइज विल डिपेंड अपॉन द ग्रुप्स यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग. Okay. ठीक है, जैसे कुछ आपने जो भी डिवाइड किए, आपने एक डिवाइड कर दिए जिसमें बहुत ज्यादा हाई बैलेंस है, जिसमें लाइक इमीडिएट इंटरमीडिएट है, और जिसमें बहुत कम है. सो जब आप सबसे हाई बैलेंस की करोगे तो आप 100% चेक करोगे, मीन्स योर सैंपल साइज विल बी इक्वल टू योर पॉपुलेशन. हाँ. अगर आपकी जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें आप उसके बेसिस पर सैंपल साइज सिलेक्ट करोगे, और अगर आपके लो अकाउंट बैलेंसेस हैं तो उसमें हो सकता है कि आप अपना मतलब टेस्टिंग ना भी करो. सो इट विल डिपेंड कि अगर आपने कुछ ग्रुप्स डिवाइड कर रखे हैं तो. और फॉर सम सैम्पलिंग मेथड द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन ईच स्ट्रेटम. ओके, कि आपकी जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट्स प्रेजेंट हैं, एज आई टोल्ड यू कि लाइक 100 में से आपने 5 95 ऐसे ग्रुप बना दिए, तो इट विल डिपेंड अपॉन हाउ मच सैंपल्स आर प्रेजेंट इन ईच ग्रुप. Okay. समझा. सो मेनली आपके मेन क्या आएंगे, आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, एक्सेप्टेड मिस स्टेटमेंट, हाँ. आपका रिस्क, और आपके स्टैंडर्ड डेविएशंस. स्टैंडर्ड डेविएशन मींस कि कितनी डेविएशंस आ रही हैं, तो उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. Okay. Auditing procedure that are appropriate to the particular audit objective should be applied to the each sample item. Auditor should project the error result in sample to the item from which the sample was selected. Okay, अब आपने क्या किया, इसके बेसिस पर सैंपल सिलेक्ट किया, अब उस सैंपल सैंपल साइज सिलेक्ट किया. हाँ. यहाँ से आपको सैंपल साइज बेसिकली पता चल रहा है कि आप यहाँ से डिसाइड करोगे कि ये आपको 20 सैंपल्स लेने हैं, 30 लेने हैं. ओके, देन आप सैंपल सिलेक्ट करते हो. अब वो 30 आपको जो लेने हैं, आप उसे कैसे सिलेक्ट करोगे. हो सकता है कि आप रेंडम सैम्पलिंग करो, कि मतलब आप कहीं से भी 20 उठा रहे हो. ठीक है, हो सकता है कि आप उसे कोई सीक्वेंस में चलो कि मतलब 100 में से हर दूसरे नंबर वाला आपको उठाना है. हाँ. सो वो कुछ सैम्पलिंग सैंपल सिलेक्शन मेथड्स होते हैं. देन उसके बाद आपने जो भी सैंपल सिलेक्ट किया आप उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो. लाइक आपने 10 सैंपल सिलेक्ट किए, आप उस 10 सैंपल की टेस्टिंग करोगे. अब जो भी सैंपल का रिजल्ट आएगा आप उसे पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करके चलते हो. लाइक अगर आपकी 100 में से आपकी 100 जो में से आपने 10 सैंपल सिलेक्ट किए, और उस 10 सैंपल में आपको कितनी मिसस्टेटमेंट मिली, उसके बेसिस पर आप ये डिटरमिन करोगे कि आपकी पूरी पॉपुलेशन में कितनी होगी मिसस्टेटमेंट. हाँ. ओके, सो यू विल प्रोजेक्ट योर रिजल्ट to the population. The auditor should project the error result of the sample to the item from which the sample was selected, and the amount of error in an item examined 100%. This projected error should be compared with the tolerable error. अब जो आपने क्या किया, अपने सैंपल का रिजल्ट पॉपुलेशन पर अप्लाई किया, then you will compare it with your tolerable error. कि suppose आपके आउट ऑफ 10 सैंपल 7 में
मिसस्टेटमेंट थी, ठीक है। अब उस 10 आउट ऑफ 10 7 में मिसस्टेटमेंट थी, इसका मतलब आउट ऑफ 100 आप कह सकते हो कि 70% इज हैविंग दिस अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट। ओके, नहीं, मुझे एग्जाम्पल नहीं समझा। अच्छा सपोज करो 10 सैंपल में आपको $100 की मिसस्टेटमेंट मिली, हाँ, तो आप क्या कहोगे? अगर 10 में $100 की है, इसका मतलब 100 में कितना डॉलर की मिसस्टेटमेंट हो सकती है? 10,000 या $1,000 की। हो सकती है। देन यू विल कंपेयर दिस प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू योर टॉलरेबल एरर, कि मान लो आप तो सिर्फ 1200 की मिसस्टेटमेंट, सॉरी आप 800 तक की टॉलरेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब ये एक्सीड कर रही है आपकी $1000 पर, इसका मतलब आपकी क्या है, पॉपुलेशन करेक्ट नहीं है। नहीं है। यस, इट इज मटेरियली मिसस्टेटेड। यस। This is how you applied your result to the population. Okay. ओके। हाँ, समझा। In addition to this quantitative aspect, you need to consider their qualitative aspect also sometime. कि उनकी nature, cause क्या है misstatement का, और relationship to the other phases of audit. कि for example हो सकता है कि उस वजह से कुछ और account आपके affect होते हो, ठीक है, आपको उसके qualitative aspect भी लेकर चलने हैं. Then projected error for all audit sampling application and all known error from non-sampling application should be considered in the aggregate by the auditor when evaluating whether the financial statement taken as a whole will be materially misstated. So, जो भी आप basically errors project करोगे, it will be aggregated together to determine कि क्या पूरी financial statement में misstatement है या नहीं है. So this is how you do the sampling. ठीक है, सबसे पहले you will decide your population, means your sampling unit क्या होनी चाहिए, कि आपको सैंपल सिलेक्ट कहाँ से करना है, और जो भी आप टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट या मटेरियलिटी लेवल ये सब डिटरमिन करके चलते हो. उसके बाद आप क्या करते हो, सैम्पलिंग कर सॉरी आप क्या करते हो बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइड करते हो. हाँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड कि आपको किसकी सैम्पलिंग किसकी टेस्टिंग करनी है. लाइक आपको सेल्स की करनी है, तो यू विल डिसाइड कि मेरी सैम्पलिंग यूनिट क्या होनी चाहिए, मतलब पॉपुलेशन कहाँ क्या होनी चाहिए. लाइक सेल्स की टेस्टिंग के लिए आपके पास क्या होंगे, अकाउंट रिसीवेबल आ सकते हैं, तो इट इज अ सैम्पलिंग यूनिट फॉर यू. हाँ। सैम्पलिंग यूनिट में से अब आप क्या करोगे, यू विल डिसाइड कि हाउ मच सैंपल यू हैव टू सिलेक्ट, कि कितना सैंपल आपको सिलेक्ट करना है. और इन केस आप उसे डिवाइड करना चाहते हो, तो यू कैन डिवाइड इट टू सम ग्रुप ऑल्सो, कि आपको किसी की 100% टेस्टिंग करनी है और किसी की 90 किसी की में से सैंपल सिलेक्ट करना है और किसी में से नहीं करना, तो यू कैन डिवाइड इट अमंग सम ग्रुप्स. यस। ठीक है, उसके बाद आप अपना सैंपल साइज सिलेक्ट करते हो. सैंपल साइज आपकी क्वांटिटेटिव आप मेथड्स भी यूज कर सकते हो और प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज कर सकते हो. देन यू विल सिलेक्ट द सैंपल, और उस पर आप टेस्टिंग करोगे सैंपल पे, और उस सैंपल का रिजल्ट यू विल प्रोजेक्ट टू द पॉपुलेशन. ठीक है, कि जितने आपकी सैंपल में मिसस्टेटमेंट आई, उसके बेसिस पर यू विल डिटरमिन कि आपकी पूरी पॉपुलेशन में कितनी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और आप उस मिसस्टेटमेंट को कंपेयर करके चलते हो टॉलरेबल एरर से, टू डिसाइड कि क्या आपकी मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है. ओके। Okay. Also, then you can consider the qualitative aspect also. हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट रिसीवेबल में प्रॉब्लम आ रही है, तो डिट मीन्स हो सकता है ना कि उसके बिहाइंड क्या हो, आपके फिक्टिशियस सेल्स इन्वॉल्व हो, कि वो कस्टमर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते और सेल्स ट्रांजैक्शंस दिखा रखी हैं. So you have to consider their qualitative aspect also. Okay. यस। Next is sampling in test of controls. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मीन्स जब आप कंट्रोल्स चेक कर रहे हो कि आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, तो उस केस में आपको कैसे
चेकिंग करनी है। ओके So first of all, again you have to select your sampling unit. आपकी यहाँ पर आप वहां मिस स्टेटमेंट यूज करते थे, यहाँ आपकी डेविएशंस होंगी। ठीक है, मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, डॉलर अमाउंट में कितना वेरिएंस है, और डेविएशन मींस कि आपके प्रोसीजर होने क्या चाहिए थे और एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, तो कितना डेविएटेड है अपने उससे पाथ से। ओके, सो यू विल टेक द डेविएशन रेट हेयर और अलाउएबल रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो। Is it clear? यस Okay, then you will do the sampling. Sampling apply when auditor decide to check ki rate of deviation from a prescribed procedure is now greater than a tolerable rate. So here there was tolerable misstatement, here is tolerable rate. तो कितने कंट्रोल्स आपके डेविएशन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कितनी टॉलरेट कर सकते हो, तो डेट इज द टॉलरेबल रेट। ओके, हाँ risk assessment procedure performed to obtain an understanding of the system of internal control do not involve sampling. पता है आपको, जब आप रिस्क असेसमेंट करते हो तो उस केस में आप कोई सैम्पलिंग नहीं करते। आप सभी चेक करते हो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये ओवरऑल लेवल पे होते हैं, आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इनमें आप सैम्पलिंग करके चलते हो। आप वापस एक्सप्लेन करना एक बार। ओके, तो सैम्पलिंग का बेसिकली क्या मतलब है कि आप 100% से कम टेस्टिंग कर रहे हो। हाँ तो ये कब करते हो आप, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक करने वाले हो या टेस्ट ऑफ डिटेल्स चेक करने वाले हो, तो उस केस में आप सैम्पलिंग करते हो। ओके ये जब आप रिस्क एक्सेस कर रहे हो तो वो आप पूरी एंटिटी के लिए कर रहे हो, उस केस में आप हाँ कोई सैंपल सिलेक्ट नहीं करते, लाइक कि मुझे सिर्फ इन एरियाज पे रिस्क एक्सेस करना है, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपको नहीं सिर्फ कंपनी के सेल्स पर रिस्क एक्सेस करना है, ऐसे तो नहीं। आपको क्या करना है, आप पूरी ओवरऑल एंटिटी लेवल पर देख कर चलते हो। ओके समझा। ठीक है, सिमिलरली आप सेग्रीगेशन कर रहे हो ड्यूटीज की, आप ड्यूटीज की सेग्रीगेशन कर रहे हो, तो आप खुद बताओ कि क्या उसमें सैंपल सिलेक्ट करने की जरूरत है? नहीं हम्म, नहीं यस नहीं, क्योंकि सेग्रीगेशन एक एक बार भी आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्यूटी सेग्रीगेट है या नहीं है, तो उसमें हाँ आपको मल्टीपल टाइम्स चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस ऐसे ही अगर आप क्या कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन मल्टीपल टाइम करने की जरूरत है? आप नहीं बार बार एक ही प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है, तो इस केस में हम सैम्पलिंग नहीं करते। जैसे इंक्वायरी कर रहे हो आप, तो इंक्वायरी एक बार करके भी आपको पता चल जाएगी। हाँ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो आप यस इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के समझ रहे हो, क्या मल्टीपल टाइम समझोगे? नहीं एक बार पढ़ के पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम सैम्पलिंग नहीं करते, लेकिन अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो या टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो तो उस केस में हम सैम्पलिंग करते हैं। ओके समझा। यस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी मेनली हम किसके लिए कर रहे हैं, रीपरफॉर्मेंस के लिए या इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन में तो हमें करने की जरूरत नहीं है सैम्पलिंग। हाँ देन नेक्स्ट, व्हेन सैम्पलिंग for test of controls that leave an audit trail of documentary evidence, the auditor should ordinarily plan to evaluate compliance in terms of deviation. So basically when he is testing for test of controls, so he has to evaluate कि क्या आपके जो भी controls हैं they are in accordance with the procedures or not. Pertinent control procedure are one that they have not been included in the design of system would have affect adversely the auditor's preliminary evaluation of the system of the internal control. So pertinent control procedures क्या हैं कि जो actual में आपके system design में included नहीं है और they may can affect your evaluation of the internal controls. ठीक है, जो actual में आपके
मतलब डिजाइन, आपकी डिजाइन करते वक्त जो एक्चुअल में प्रोसीजर्स नहीं प्रेजेंटेड। नहीं समझा। सो पर्टिएंट कंट्रोल्स मीन्स कि वो कंट्रोल्स, वो प्रोसीजर्स आपके विच आर एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड in the design of your internal controls. ओके। मीन्स जो कंट्रोल्स आपके बेसिकली प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मतलब स्टिल कंफ्यूजिंग है मेरे लिए थोड़ा। अच्छा, okay, I will explain you this term in tomorrow. ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। अदरवाइज पर्टिएंट कंट्रोल्स आपके यही होते हैं कि जो बेसिकली यही मेजर करते हैं कि आपके कंट्रोल्स कितने प्रिवेंट कर पा रहे हैं किसी मिसस्टेटमेंट को, किसी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। सो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कंट्रोल्स, यही सब मतलब इसके अंदर आते हैं आपके। ओके। हम्म बट ये इंटरनल कंट्रोल के लिए होता है। हम्म कि आपके मतलब जो कंट्रोल्स हैं वो कितने इफेक्टिव है कि आपकी किसी स्टेटमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर वो हो चुकी है तो डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्यूटी सेग्रीगेट कर दी कि कोई मिसस्टेटमेंट हो ही ना, लेकिन हाँ। स्टिल अगर वो हो भी जाती है तो आपने क्या कर रखा है, एक मंथली रिकंसिलेशन कर रखा है कि हाँ मंथली में हम रिकंसाइल करके देखेंगे, तो अगर हुई भी है तो वो रिकंसिलेशन में आ जाएगी। तो ये है आपके प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल्स। ओके। So auditor overall evaluation of control for a particular purpose involves combining the judgment about prescribed control, the sample result of test of control, and degree of assurance. Then you have to compare ना कि आपके prescribed controls कैसे हैं, like आपके controls के according जो policies बनाई है वो actual क्या कह रही है और actual में आपका हो क्या रहा है। हाँ। देन कि जैसे आपकी जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग, कंपैरिजन, कस्टडी, ये ड्यूटीज सेग्रीगेट होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपकी ऑथराइजेशन और रिकॉर्ड कीपिंग की ड्यूटी सेग्रीगेट नहीं है। सो दिस इज द डेविएशन। हाँ। तो क्या आपके प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल्स हैं और आपके एक्चुअल रिजल्ट क्या दिखा रहे हैं। सो इस बेसिस पर ही तो ऑडिटर अपना रिजल्ट इवेलुएट करेगा। हाँ। देन उसके बाद एक रिस्क लेकर चलना होता है कि कितना रिस्क वो एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक हाउ मच रिस्क ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट फॉर द रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो। कि आपको बताया था कि जो कंट्रोल्स हैं अगर आप उसे इफेक्टिव मान के चल रहे हो और अपनी टेस्टिंग कम कर रहे हो तो देयर में भी रिस्क ना कि आप गलत ओपिनियन दे दो। सो वो रिस्क लेवल ऑडिटर कितना ले सकता है उसे डिटरमिन करके चलता है। जैसे आप उसमें रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस डिटरमिन करके चलते हो कि कितना रिस्क आप ले सकते हो, ऐसे इसमें आप रिस्क एक्सेस करके चलते हो बिकॉज अब आपको रिजल्ट अपने इवेल्युएट करने हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ बेंचमार्क तो होने चाहिए ना। हाँ, समझा। देन उसके बाद द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड। अब आपको सैंपल सिलेक्ट करना है तो यहाँ सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगेन इसके लिए क्या कर सकते हो आप, कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। सो आपको क्या लगता है अगर टॉलरेबल रेट ज्यादा होगा तो सैंपल साइज कम सिलेक्ट करना होगा या ज्यादा। कम। यस, इनवर्सली डिपेंड करेगा। जैसे वहां हाँ। मिसस्टेटमेंट थी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, यहाँ टॉलरेबल रेट है।
लाइकली रेट ऑफ डेविएशन, आपको जो डेविएशंस दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? अगर डेविएशन ज्यादा दिख रही है तो टेस्टिंग ज्यादा करोगे या कम? अगर ज्यादा दिख रही है तो ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो यू विल सिलेक्ट द मोर सैंपल साइज। अलाउएबल रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो, कि जो रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हो कंट्रोल रिस्क टू लो एक्सेस करने का, वो बहुत कम है। तो फिर मतलब अलाउएबल रिस्क, कि कितना रिस्क आप अलाउ कर सकते हो। अगर वो रिस्क ज्यादा होगा तो आप अपना सैंपल साइज कम रखोगे या ज्यादा? एक सेकेंड, अगर रिस्क ज्यादा है तो मैं मेरा सैंपल साइज भी अलाउएबल ज्यादा रिस्क, रखूंगी। अलाउएबल मीन्स कि कितना आप लाइक रेडी टू अलाउ, कि कितना आप टॉलरेट करने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो। ओके, अलाउएबल रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो, हाँ। मतलब कितना आप अलाउ कर सकते हो कि जो आपने कंट्रोल रिस्क टू लो एक्सेस किया है वो रिस्क लेने के लिए। ये रिस्क को लेने के लिए कितना रिस्क आप एक्सेस कर सकते हो, कितना अलाउ कर सकते हो ये रिस्क। मतलब वो तो ऑडिटर पर डिपेंड करेगा ना, वो कंपनी साइज देख के। नहीं, मैं ये कह रही हूँ इसका सैंपल साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये रिस्क है आपका जो मैंने हाईलाइट किया है, हाँ। इस रिस्क को लेने का रिस्क कितना ले सकते हो आप। नहीं, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, वो दो बार रिस्क आ गया ना, ये रिस्क है आपको हाँ। पता हाँ। है, ये रिस्क कितना लेने के लिए आप तैयार हो। तो अगर आप ये रिस्क ज्यादा ले सकते हो तो आप अपना सैंपल साइज कम रखोगे। नहीं, मैं नहीं समझ पा रही आप हूँ। रिस्क ज्यादा लेने के लिए तैयार हो तो नो हाँ, प्रॉब्लम, आप कम टेस्टिंग करोगे। पर लेकिन मैं अगर आप, ज्यादा risk क्यों लूँ? अरे ये आपके सैंपल साइज को कंसीडर करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो उस केस में आप अपना सैंपल साइज कम कर सकते हो। हाँ। Whereas अगर आप ये रिस्क कम लोगे तो आपको अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आपको सैंपल साइज तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ओके, हाँ, समझा। अगर मुझे रिस्क ज्यादा लेना है तो फिर मैं सैंपल साइज कम रख सकती हूँ। बट हम्म। अगर मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, बट अगर चाहिए तो बट ज्यादा भी नहीं, तो मैं सैंपल साइज बड़ा ज्यादा रखूंगी। हम्म। ओके, समझा। ठीक है, उसके बाद it will give you the sample size, then हाँ। you have to select the sample। हाँ। वो सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मींस आपको इफेक्टिव सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ। करना चाहिए आई मीन। देन आप उस सैंपल पे अपने प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। हाँ। उस प्रोसीजर्स के बेसिस पर आप क्या करोगे, सैंपल पर रिजल्ट निकालोगे कि कितना डेविएशन रेट एसोसिएटेड है सैंपल पे। ठीक है, आपके उस सैंपल में से जो आपने सैंपल टेस्ट किए हैं उसमें कितने डेविएशंस आ रही हैं। जैसे उसमें मिसस्टेटमेंट आ रही थी, अब इसमें डेविएशंस आ रही हैं कंट्रोल्स में। हाँ। उसको फिर आप अपनी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करके चलते हो, ओके। है ना। आप उस सैंपल हाँ। के हाँ। बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन पर प्रोजेक्ट करते हो। देन यू कंपेयर दिस विद द टॉलरेबल रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। जो आपने निकाला और जो टॉलरेट कर सकते थे, कंपेयर करोगे। अगर आपकी डेविएशन ज्यादा आ रही है टॉलरेबल रेट से, इसका मतलब आपके कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं। यही मतलब ठीक हुआ है। कि आपकी हाँ। डेविएशन बहुत ज्यादा है। और जबकि डेविएशंस कम है अगर टॉलरेबल रेट से, इसका मतलब आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। ओके, समझा। अगेन नेक्स्ट यू हैव टू कंसीडर देयर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आल्सो, क्योंकि अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं इफेक्टिव, देयर मे बी चांसेस कि वो ड्यू टू फ्रॉड ना हो, उसके पीछे कोई फ्रॉड रिलेटेड वजह ना हो। तो यू हैव टू कंसीडर देयर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आल्सो। हाँ। ओके, सो अब ये जो आपने कंट्रोल्स चेक किए हैं,
ये कंट्रोल्स बेसिकली आप किस लिए चेक कर रहे हो? इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। हाँ सो एक तो ये आपको इंटरनल कंट्रोल्स पर ओपिनियन देगा आपको कि आपके कंट्रोल्स पर अगर आपको ओपिनियन देकर चलना है तो क्या ओपिनियन आ रहा है आपका। सेकेंड थिंग, जो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हो, इट विल गिव यू एन आइडिया कि अब आपको कितनी टेस्ट ऑफ डिटेल्स करनी है। अगर आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल्स इफेक्टिव आ रहे हैं, सो इसका मतलब आप अपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम रख सकते हो। सो दिस इज ओके द यूज कि क्या अब आप इसका यूज क्या करोगे। आपने कंट्रोल्स चेक कर लिए, तो वो कंट्रोल्स बेसिकली क्यों चेक करें? आपकी कंट्रोल्स इफेक्टिव है या, और उसके बाद अब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो परफॉर्म करने वाले हो उसके लिए भी तो ये काम आएंगे, है ना। अगर आपके हाँ कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो अब आप अपनी टेस्टिंग कम कर सकते हो, सब्टेंटिव टेस्टिंग। ओके क्लियर? हाँ So this यस is about the how you check the test of controls and test of ओके detail. अंडरस्टूड Yeah. यस अच्छा, सैम्पलिंग अप्रोच मीन्स कि अब आपको सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है। मीन्स स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है कि जब आप पर्टिकुलर मेथड्स यूज करके चलते हो कि हाँ जिस से आपका क्या हो, सैंपल साइज कैलकुलेट हो, it will result in efficient sample, measure the sufficiency of audit evidence obtained and evaluate the sample result कि आपका सैंपल क्या है, लाइक इट विल बी इफेक्टिव कि जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। हाँ देन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि बिकॉज दे रिक्वायर सम मेथड्स कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो जब आप सैम्पलिंग करने वाले हो तो आपको उस मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक यू नीड टू गेन सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग चाहिए तो कॉस्ट भी आएगा। इट मीन्स स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इन्वॉल्व सर्टेन कॉस्ट ऑल्सो। ओके ठीक है, जबकि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में आपकी क्या है, ऑडिटर की जजमेंट यूज हो रही है। हाँ क्लियर? जबकि इसमें आपके प्रॉपर मेथड्स यूज हो रहे हैं, तो उन मेथड्स की ट्रेनिंग भी तो चाहिए, सो दे रिक्वायर सर्टेन कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है। देन तो अगर जैसे कि नॉन स्टैटिस्टिकल में हम्म ऑडिटर का जजमेंट सब कुछ होता है, तो हम्म व्हाट इफ अगर मैंने कोई प्रोफेशनल को हायर किया है इसके लिए, हम्म तो वो भी तो मेरा कॉस्ट ही हुआ ना, खर्चा। आप प्रोफेशनल क्यों हायर करोगे? हाँ मैं भी तो दे सकती हूँ हम्म पॉइंट। नहीं नहीं, मैं भी तो जजमेंट दे ही सकती हूँ। हाँ, आप ऑडिटर हो तो आप दूसरे ऑडिटर को क्यों हायर करोगे? ओके अगर आप अपना वर्क डिवाइड करना चाहते हो, लाइक किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहते हो, वो अलग बात है, बट आप सैंपल सिलेक्ट करने के लिए थोड़ी बुलाओगे किसी को। हाँ हो गया। हम्म सो कल हमारे ये कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स आएंगे। ठीक है। देन यस डन। तब तक आप ये रिवाइज करके आना। ओके ओके देन, यस बाय। थैंक यू बाय। ओके, बाय।